میرے پاس تو پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ ایک سے جان چھڑوا کر دوسرے کو اپنے پیچھے پڑوا لیا میں یہ سب کچھ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ کس نے کہا تھا ہر جگہ خود کو گھسانے کا؟ گڑیا جو کہ منہ کو دوپٹے سے ڈھانپتی ہوئی بس اسٹیشن پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ دوسرے شہر جانے والی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی جگہیں اسے بدلنی پڑ رہی تھیں۔ ایک جگہ بمشکل سے سیٹل ہو پائی تھی وہ، اور اب زیان کی وجہ سے اسے پھر سے دربدر ہونا پڑ رہا تھا۔ ابھی بس چلنے میں کافی دیر تھی جس وجہ سے گڑیا کو ویسے ہی بس میں بیٹھنا پڑا۔ دھیرے دھیرے سے باقی مسافر بھی بس پر سوار ہونے لگے تھے۔ گڑیا جسے بے چینی لگی ہوئی تھی چونکہ اسے ڈر تھا کہیں زیان یہاں پہنچ نہ جائے اور اسے پکڑ کر واپس نہ لے جائے۔ بھائی اور کتنی دیر ہے، جلدی بس کو چلا لیں، اتنی تو سواریاں بیٹھ چکی ہیں، بس کریں، اتنا لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ گڑیا جو یہاں بھی خود کو روک نہ سکی تھی بولنے کے لیے۔ بہن ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، آپ ہمیں ہمارا کام نہ سکھائیں۔ لالچی لوگ جب تک بس سے بھی زیادہ وزن لوگوں کا نہ بڑھ جائے تب تک یہ لوگ کہاں اسے چلائیں گے۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آخر میں 2 سیٹس خالی بچی تھیں۔ گڑیا ونڈو میں سے باہر کا منظر دیکھنے لگی جب اسے 3 گاڑیاں آگے پیچھے بس اسٹاپ پر رکتی نظر آئیں جن میں سے بہت سے گارڈز باہر نکلتے سبھی بسوں کو چیک کرنے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ گڑیا کو تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا تھا، مگر جب سب سے آگے والی گاڑی میں سے زیان شاہ خود اترتا اسے دکھا تب اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ زیان شاہ اسے ہی تو ڈھونڈنے یہاں آ پہنچا تھا۔ گڑیا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ بھائی میرے اب تو بس چلا لو، گڑیا کنڈکٹر کی منتیں کرنے لگی۔ ابھی 2 سیٹس خالی ہیں، رکیں۔ وہ کہاں اپنا ٹارگٹ پورا کیے بغیر بس چلانے والا تھا۔ بہن آپ پلیز اس بس میں بیٹھ جائیں۔ پریشان گڑیا کھڑکی کے باہر سے گزر رہے لوگوں کو روک روک کر اس بس میں بیٹھنے کا کہنے لگی۔ پاگل ہو کیا؟ میں تو اپنی امی کو چھوڑنے آئی ہوں۔ گڑیا جس بیچاری کو تو بس خود یہاں سے جانا تھا تبھی وہ لوگوں کو بس میں بیٹھنے کا کہنے لگی۔ بھائی میرے یہ لو، یہ 2 ٹکٹس کے پیسے بھی میں بھر رہی ہوں، بس اب تو چلا لو یہ بس۔ آخر مجبوراً جو تھوڑے بہت پیسے اس کے پاس موجود تھے کو نکالتے اس نے کنڈکٹر کو پکڑا دیا کہ وہ ہی ان 2 سیٹس کو بھی خرید چکی ہے، جس وجہ سے کنڈکٹر نے بس چلوا دی۔ ابھی زیان اس بس کی طرف نہیں آیا تھا، بس چل پڑی۔ گڑیا نے سکون کی سانس لی چونکہ اب تو بس وہ بچ چکی تھی، اب اسے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ مگر بس ابھی سڑک پر چلی ہی تھی جب اس کے آگے زیان کی گاڑیاں آ کر رکتی اسے اشارہ دیے روک گئی۔ اچانک سے بس کو بریک لگائی گئی جس وجہ سے گڑیا بھی اپنی سیٹ سے اچھل پڑی۔ اب کیا ہو گیا؟ گڑیا کے چہرے پر خوف چھانے لگا تھا کیونکہ ابھی نئی مصیبت آنی باقی تھی۔ ہم نے بس کی تلاشی لینی ہے، رکو۔ زیان نے ڈرائیور کو روکا اور خود بس پر سوار ہو گیا۔ ارے نہیں، جلدی سے۔ گڑیا نے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے دوپٹے سے لپیٹ لیا اور جو خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ کاندھے کے ساتھ اپنا سر ٹکانے لگی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ تو اس خاتون کے ساتھ ہے۔ زیان ساری سیٹوں پر موجود لوگوں کو چیک کرنے لگا۔ گڑیا کا دل زور شور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ زیان بس چلا جائے یہاں سے۔ زیان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جب گڑیا نے مکمل ساتھ والی خاتون کے کاندھے پر سر رکھ ہی لیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس کی ماں ہے، جسے دیکھ زیان بھی قریب سے گزرتا واپسی کو پلٹ گیا۔ اسے گڑیا یہاں پر نہیں ملی تھی۔ گڑیا خوش ہونے لگی کہ شکر ہے وہ بچ گئی۔ آخرکار زیان کی شکل وہ آخری مرتبہ دیکھ سکی ہے۔ اب دوبارہ اس کا اس انسان کے ساتھ کبھی سامنا نہیں ہوگا۔ مگر زیان ابھی بس سے اترا نہیں تھا جب گڑیا کے ساتھ والی خاتون گڑیا کو پرے دھکیلتی، کیا باجی میرے کاندھے پر ہی چڑھی جا رہی ہو؟ میں کیا تمہیں تکیہ نظر آ رہی ہوں؟ حد ہوتی ہے۔ اس قدر برے طریقے سے گڑیا کو ڈانٹنے پر وہ بیچاری پیچھے ہٹ گئی۔ وہیں زیان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ گڑیا
खुद खौफज़दा नज़रों से ज़ियान को देख रही थी। जब ज़ियान उसकी जानिब पलटता हुआ गुड़िया का हाथ पकड़े, चलो उठो, वो उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। प्लीज़ छोड़ो मुझे। गुड़िया इस शख्स से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। बचाओ प्लीज़। गुड़िया लोगों से मदद मांगे जाए मगर किसी की इतनी मजाल नहीं थी जो ज़ियान को रोक सकता। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों के घर बर्बाद करके शादी से भागने का, लेकिन अब की मर्तबा तुम्हारा पाला गलत इंसान के साथ पड़ा है। चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना चली जाती, मैं वहाँ से भी तुम्हें निकाल लाना था। गाड़ी की पिछली सीट पर वो बुरे तरीके से धकेलता हुआ खुद वो उसके पास बैठता जो गाड़ी में रखी हुई थी। उसकी कलाइयों को आपस में जोड़े बांध गया। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ रुक जाएं। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैंने जानबूझ के आपकी बीवी को भगाया है। वो तो खुद आपसे जान छुड़वाना चाहती थी। गुड़िया अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश किए जाए मगर जितना वो अपने बाजू को हिलाती इतनी ही वो टाइट हो जाती। तुम्हारी कलाइयाँ तो तभी आज़ाद होंगी जब तुम हर अंदाज से मेरी बन जाओगी। गुड़िया को अब असली खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि अब वो बुरे तरीके से फंस चुकी थी। वापस घर ले जाए, वो किसी गुलाम के जैसे घसीटता हुआ उसे घर के अंदर ले आया था। आईना गुड़िया को बंद बांध कर उसे कमरे के अंदर लाते देख शॉक्ड रह गई। ये सब क्या है? वहाँ मौजूद सब लोग हैरान थे। जब मौलवी साहब के पास वो गुड़िया को बिठाता, चले निकाह शुरू करें, दुल्हन आ चुकी है। आईना वियान का बाजू पकड़ती। वियान जी, ये आपके भाई क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इन्हें रोके ना। गुड़िया के हाथों को ऐसे क्यों बांधा हुआ है जैसे कि वो कोई मुजरिम हो। वो वियान से उसकी मदद करने का कहने लगी थी। जब वियान उसके हाथ को मजबूती से पकड़ता, मैं भाई के मामले में कुछ नहीं बोल सकता, ये उनका ज़ाती मामला है। क्योंकि बचपन से ही हम दोनों भाइयों ने एक ही फैसला किया था, चाहे हम दोनों गलत करें या सही, एक दूसरे के इस मामले में बहस नहीं करेंगे। वियान जो साफ मना कर गया क्योंकि ज़ियान शाह के बारे में वो भी अच्छे तरीके से जानता था कि इस वक्त वो किसी की नहीं सुनने वाला था। लेकिन वो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, इस बात पर आपको बोलना चाहिए। आईना खुद रोने लग गई। तुम मत देखो, वैसे भी वो लड़की खुद इस दोराहे पर आई है ना, इस हवेली में आती और ना ही आज उसके साथ ये सब होता। बयान अपने भाई की मुखालफत क्यों करता? मैं ये शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। गुड़िया जिसके बेशक हाथ बंधे हुए थे मगर वो फिर भी डर नहीं रही थी बल्कि अभी भी हिम्मत से काम ले रही थी। अच्छा, तो तुम ये शादी नहीं करोगी? ज़ियान उसके पास बैठता पूछने लगा। हाँ, मैं नहीं करूँगी, गुड़िया ने भी गुस्से से कहा। तो ठीक है, कमरा तो वैसे भी हमारी सजा हुआ है, तो वो तो हम वैसे भी मनाएंगे। सही है, बस अगर ये निकाह हो जाता तो मैंने सिर्फ अपना हक वसूल ही करना था, लेकिन अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे भी इस गुनाह को करने में किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। जान की सोच जाने गुड़िया शॉक्ड रह गई। चलो सब जाओ अपने अपने घर, ये निकाह अब नहीं हो रहा। चलो मौलवी साहब आप भी जाएं। माजरत इतना इंतज़ार करवाने के लिए। ज़ियान तो हर सूरत राज़ी था, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गुड़िया को तकलीफ़ पहुंचाना था। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? कितने फ़ख्र से आप इतनी गंदी बात कर रहे हैं। गुड़िया ज़ियान की सोच पर अफ़सोस करने लगी थी। तो तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें मिन्नतें करूँगा? प्लीज़ ये निकाह कर लो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये मत भूलो तुम मेरी पसंद नहीं, बस बदलाओ। तो तुम्हें जिस हाल में भी अपने पास रखूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़ियान उसे साफ साफ सुना गया। अब भी आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, तुम निकाह करोगी या नहीं? इसके बाद मौलवी साहब तुम्हारी मिन्नतें करने पर भी इस घर में कदम नहीं रखेंगे। ज़ियान ने एक मर्तबा फिर से उससे पूछ लिया। जब गुड़िया अपने हलक में अटकी सांस को नीचे करती। ठीक है, मैं करूँगी। गुड़िया जिसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरन ये बात माननी ही पड़ी थी।
तो बगैर नाटक किए चुपचाप निकाह करो। जियान उसे आंखें दिखाता वापिस से बैठ गया। गुड़िया की आंखों से आंसू टपकते उसकी गोद में गिर रहे थे। ये पहली मर्तबा था जो दुल्हन का निकाह उसके हाथों को बांधे किया जा रहा था। वो बेचारी अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये निकाह कर रही थी। उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो निकाह नामे पर साइन करते जियान शाह की बीवी बन चुकी थी, और इस बात को सोच कर ही उसकी जान जा रही थी। किस इंसान के साथ उसकी किस्मत जुड़ चुकी थी। आईना खुद रोई जाए जब बयान उसका हाथ पकड़ता। बस करो, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया जो तुम इतना अफसोस कर रही हो। बयान उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था जब आईना अपना हाथ झटकती वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो मज़ीद इस जगह नहीं रहने वाली थी, मज़ीद ये सब होते नहीं देखना चाहती थी। जियान काम मुकम्मल होते ही गुड़िया को पकड़ता खींचते हुए अपने कमरे में ले जाने लगा। वैसे ही जो जानने वाले इस शादी में शिरकत करने आए थे जियान शाह की हरकत देख बातें करने लगे थे। ज़ैनब बेगम खुद शर्मिंदा सी होकर रह गई क्योंकि ये सब उनके घर में क्या हो रहा था। जियान अपने कमरे में जाता, बुरे तरीके से गुड़िया को बिस्तर की जानब धकेलता, दरवाज़ा बंद कर गया। आखिरकार तुम मेरी बीवी बन ही गई। इस कमरे में अब हक से तुम रह सकती हो। तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए देखो मैंने तुम्हारी मदद कर डाली। गुड़िया के वो उतारने लगा। जियान जी प्लीज़, आपको गलत फहमी हुई थी। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, बल्कि मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। गुड़िया उसे समझाने की कोशिश किए जाए मगर हाथों के बंधे होने की वजह से उससे खुद की मदद कर पाना नामुमकिन सा लगने लगा था। जियान शाह ने अपनी मन मर्जी दिखाते हुए उसके वजूद पर से हटा दिया था। जब उछलती हुई जो बिस्तर पर पड़ा था वह मुश्किल से खुद पर ले गई। खुद को समझती क्या हो तुम? पहले मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया और अब खुद शादी से भागकर तुम हमारे ख़ानदान की नाक कटवाना चाहती थी। तुमने मुझे समझ क्या लिया था? मैं गाज़ान जैसा हूँ जो तुम्हें आसानी से जाने देगा और तुम मुझसे बचकर भाग निकलने में कामयाब भी हो जाओगी। कमरे में हतर बंधी हुई लड़की से ज़ियान शाह मुखातिब था। गुड़िया जिसकी आंखों से टपकते आंसू उसके वजूद से लिपटे भगोने का सबब बन रहे थे, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन था। सिगरेट का कश लगाता ज़ियान शाह चलता हुआ बिस्तर के नज़दीक पहुँचा था। तुम्हारी मदद मैंने सिर्फ इस वजह से की थी क्योंकि मुझे तुम अच्छे घराने की लड़की लगी थी, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बहुत चीख चीख कर कह रही थी ना कि अगर तुम मेरी बीवी होती तो सारे ज़माने की खुशियाँ मेरे कदमों में ला कर रख देती। तो ठीक है, अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, अब दो मुझे खुशी। बिस्तर के करीब खड़ा होता वो उसे पुरानी बातें याद करवा रहा था, मगर गुड़िया तो मुसलसल अपना चेहरा नीचे झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। जब अपना पाँव जूते समेत जो बिस्तर पर रखता बुरे तरीके से गुड़िया के जबड़े को दबोचता। तुमसे ही मुखातिब हूँ मैं, और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में देखा करो। किसी का इग्नोर करना मेरी बर्दाश्त से बाहर होता है। गुड़िया जिसके हाथ आपस में बंधे हुए थे अचानक से जान के यूं उसके बालों से खींचने पर वो सिसक उठी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मेरा मकसद आपका घर ख़राब करना नहीं था, वो बस एक गलत फहमी थी। गुड़िया ने फिर से उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की थी। रुखसार मोहब्बत थी मेरी, उसकी खातिर अपनी जान तक दे सकता था मैं, मगर तुम्हारी वजह से वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। फिर भी तुम उसे माफ़ी की उम्मीद रख रही हो? तुम तो अब सिर्फ मेरी देखोगी, मेरा गुस्सा देखोगी, मेरी नफ़रत सहन करोगी। गुड़िया ने अपने वजूद के गिर्द लिपटा हुआ था को खींचकर वो परे करता अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को सीधा गुड़िया के लगाता बुझा गया। दर्द की शिद्दत सहन करते गुड़िया हलक के बल चिल्ला गई। वो अचानक से पीछे मौजूद तकिए पर जा गिरी जिसके हाथ बंधे हुए अपने जले हुए हिस्से पर फेरने लगी, मगर ज़ियान अपने इस हिस्से को छूता हुआ, ये तो बस शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की, और अभी से तुम चिल्लाने लगी। वो इस हिस्से को छूता हुआ गुड़िया की बुलंद करवा गया, वहीं अपना हाथ वो उस लड़की की
छूने लगा जहाँ वो कुछ ही देर में खुद को उतारने वाला था। गुड़िया, जो हर वक्त मजाक करने वाली लड़की थी, वो नहीं जानती थी इस घर में आना उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। वो बुरे तरीके से फंस चुकी थी। दोबारा फिर से भागने के बावजूद वो नाकाम रही और ज़ियान उसे ढूंढ कर वापस इसी घर में ले आया था, जो गुड़िया के लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। अपनी वो गुड़िया की कमर के नीचे हाथ ले जाता, दुरुस्त करने लगा। प्लीज़ यान जी, प्लीज़ नहीं, मुझसे जो गलती हुई मैं उसे सुधार सकती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दे दें। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। हाथ बंधे होने की वजह से वो खुद की मदद भी नहीं कर पा रही थी, ना ही ज़ियान शाह के सामने उसकी एक भी चलने वाली थी। वो खुद को उसकी रूह में उतार गया। गुड़िया की तकलीफ दे सरगोशी ने पूरे कमरे में सनसनाहट पैदा कर दी थी। गुड़िया की कलाइयों को उसके सर से ऊपर की जानिब करता वो अपनी गुड़िया की सांस रोकने की वजह बनने लगा। वो अपना हक वसूल कर रहा था। वो इस कदर अंदाज से जिसके लिए ज़िंदगी मजाक थी, मगर अब उसे अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी कि ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। ज़ियान शाह अपनी नफ़रत इस अंदाज से दिखाता रहा जब तक गुड़िया बेहोश नहीं हो गई। आखिर तब जाकर ज़ियान ने उसे छोड़ा था, उसकी कलाइयों को तब जाकर उसने आज़ाद कर दिया। इतनी तकलीफ़ और